Sorry. Again, see here. First, you have to write the heading, solving linear equation. Then below that one, you have to write, there are two methods of solving a linear equations. Okay. After writing that, 2 points are given there on same page, page number 93. The 2 points you have to write. Your first point is, means first method that is given, that is balancing an equation, and second one is transposing method. Okay, write down that 2 points. Balancing an equation and transposing method. Okay? Okay, sir. Now, page number 96. Page number 96. Page number 96. Okay? So now listen here. Don't write anything. Again, I will tell you both methods. What is balancing an equation and what is transposing method. So that day I explain you. Suppose here x plus 5 is equal to 7 is there. I am explaining balancing an equation. Balancing an equation. Balancing, balance karna. Okay, like this you have to balance it. Means you have to add on both side, you have to subtract on both side. बैलेंस कब होता है? जब दोनों साइड में ऐड करते हैं सेम अमाउंट या दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम अमाउंट. तो यहां पर कैसे बैलेंसिंग होता है? x प्लस 5, तो यहां -5, इस साइड में भी -5, तो ये बैलेंस हुआ. सॉरी, 7 - 5. ओके, तो यहां पर क्या हुआ? इक्वेशन बैलेंस हुआ क्योंकि यहां से भी सब्ट्रैक्ट किए, यहां से भी सब्ट्रैक्ट किए. सो दिस इज बैलेंसिंग. फिर बाद में हम कैसे सॉल्व करते हैं? x 5 गेट्स कैंसल, सो x विल बी इक्वल्स टू 2. तो ये आंसर हम निकालते हैं. And second one is transposing method. Transposing means suppose x plus 5 is equal to 7 is there. You have to transfer this number to that side. Means x is equal to 7 as it is, and transfer this 5 to that side is -5. So x will be equals to 2. So in both methods you can get the same answer. Okay. So you can use any one of them. Okay, understood? So these both the methods I already explained you, balancing method and transposing method. So now you have to write exercise 7C, question number first. Write down. सर नोटबुक में ही लिखे ना? हाँ? Wait. पहला पीरियड. Hello? Any problem? No, sir. हाँ, write down first problem. So what is the first problem? See here. Which of the following methods, which of the following numbers satisfy the given equations? Try each number. So first one is x plus 3 equal to 9. Your first equation is x plus 3 equals to 9. And some roots are given here. 5, 3, minus 3, 6. 5, 3, minus 3 and 6. Means you have to find which of the following numbers satisfy the given equation. Which of the following numbers satisfy the given equation? Means there are 3 roots, 3 answers, 1, 2, 3, 4. इनमें से कौन सा यहां पर सही बैठता है? कौन सा नंबर x के जगह लिखने से आंसर 9 आता है? So that you have to find out. Okay? तो अभी आप एक एक नंबर यहां पुट करके देख लीजिए और बाद में आपको मिल जाएगा कि which number is the root of this equation. Which number satisfy the given equation? 6. आपने 6 निकाला, आंसर सही है. आपने यहाँ 6 पुट किया, 6 plus 3 is equal to 9 होता है. Means you can say that 6 x equal to 6 satisfy the given equation. तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते 6 यहाँ पर, तो एक एक नंबर पुट करके देखेंगे. So if x equals to 5, तो पहले 5 लेकर देखेंगे. If x equal to 5, then x plus 3 equation first you have to write x plus 3. x means कितना? 5 लेंगे. 5 plus 3 equal to 9 और यहाँ आता है 8 equal to 9. So this is not equal. This is not possible. So 8 is not equal to 9. तो ये नहीं है, ये wrong है. Second, if x equal to 3, same equation again you have to write x plus 3 equal to 9. तो आप 3 पुट करके देखिए. 3 plus 3 is equal to 9. So 3 plus 3 means 6 is equal to 9. This is also not possible. Okay. Now third one minus 3 लेकर देखिए. If
x equals to -3, so x plus 3 is equal to 9. ओके, सो -3, हाँ सर. x के जगह आप -3 लिखेंगे, ये +3 इज इक्वल टू ये 9, -3 + 3 यानी 0 इक्वल टू 9. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, एंड लास्ट वन यू हैव टू राइट, वो उधर लिखता हूं मैं. So if x equal to 6, okay, so x plus 3 is equal to 9. So 6 plus 3 is equal to 9, means 9 is equal to 9. So this is correct. Okay, so now you can say that x equals to 6 satisfy the given equation. Equal to 6 satisfy the given equation. So in this way you can find the answer. अगर आपको पहले ही अगर मिल जाता यहां पर, हेलो हेलो, कैन यू हियर Yes मी? sir. सुनाई दे Yes रहा sir, we आपको? can hear you. Yes हाँ? sir, yes हाँ. sir. हाँ, अगर हाँ, आपको सर. पहला ही नंबर अगर राइट मिल जाता यहां पर तो आप डायरेक्ट लिख देना, बाकी के फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पहला ही मिल गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस नंबर सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन. पहला नहीं मिला तो दूसरा सॉल्व करो, अगर दूसरा मिल गया तो लिख दो, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा सॉल्व करो, नहीं मिला तो चौथा सॉल्व करना. ठीक है, और जब जो आंसर मिलता है वो लिखना है. देयरफॉर x इक्वल टू 6 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ओके, अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? सिर्फ Yes, वैल्यू पुट sir. किया. ओके, सो राइट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट. गिवन के साथ Already taken. Sir, already taken. सर स्क्रीनशॉट लेते रुको. डन सर. रुको. सर बोर्ड नहीं दिख राउटर इकडे. एनी प्रॉब्लम? No sir. सर स्क्रीनशॉट निकाल. सर स्क्रीनशॉट ले लो. सर साइड में. मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताऊंगा. कौन सा? सर साइड में. जी वाला. क्वेश्चन नंबर जी लिखिए, उसके बाद बाकी आप करोगे. क्वेश्चन नंबर जी, राइट डाउन x plus 1 by 3 equal to 7. Over this. नहीं. Yes sir. बोर्ड पे सॉल्व करके देंगे क्या? सर आपको जी वाला बोर्ड पे सॉल्व करके देंगे. एक स्क्रीनशॉट. ओवर. डन सर. हेलो. Yes sir. ओवर. Yes sir. ओके. सर Now listen here. Next. Question number G. Write down. Question number G. What is there? X plus 1 by 3 equal to 7. X plus 1 Last problem. is 7. X plus 1 by 3 is equal to 7. You 7. have to consider the values. The given are 7. 16, 21, 20 minus 20. Yes sir. 16, 21, then 21. 20. 20. or Minus 20. minus Minus 20. minus 20. Okay. 16, 21, 20 and minus 20. सबसे पहले हम x इक्वल टू, सो इफ x इक्वल्स टू 16 लेते हैं. ओके, सो x प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 7. दिस इज योर गिवन इक्वेशन. ये आपका गिवन इक्वेशन है. ओके, इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 16. सो 16 प्लस 1 by 3 is equal to 7. 16 plus 1 means 17. 16 plus 1 17 by 3 is equal to 7. Not possible. First आंसर नहीं है. सेकेंड वन, if x equal to 21 लेते हैं तो इक्वेशन इज x plus 1 by 3 is equal to 7 is there. x means 21 लेना है. So 21 plus 1 by 3 is equal to 7. हेलो. Yes sir. वन प्लस 1 22 by 3 is equal to 7. ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है. थर्ड वन, if
x equal to 20. Okay, so x plus 1 by 3 is equal to 7. So 20 plus 1, 20 plus 1 by 3 is equal to 7. 20 plus 1 means 21 by 3 is equal to 7. ठीक है? सर यही So है correct. 21 is divisible by 3. correct है 22 is not divisible by 3. 17 is also not divisible by 3. But this 21 is divisible by 3. अगर आप इसे डिवाइड करोगे 21 by 3 तो 3 7 मतलब यहाँ 7 आंसर आता है. ओके, दिख रहा है कि आपको नीचे का है? Yes, sir. हाँ सर हाँ, ठीक है, तो यही आपका आंसर है. ओके, सो x इक्वल टू 20 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ लिखो, दिखता है आपको यहाँ से? हेलो, हाँ सर थोड़ा थोड़ा दिखता ये है दिख रहा है क्या ये? हाँ सर थोड़ा थोड़ा ओके, सो x इक्वल टू 20 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. दिख रहा x equal to 20 satisfy the given equation. Write down. Done, sir. डन. देखो हमने 3 सॉल्व किए, थर्ड इसमें आंसर मिल गया तो चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. पहले में आंसर मिल गया तो बाकी के करने की जरूरत नहीं, उतना टाइम बच जाता है. सर साइड में ओवर. यस सर नो सर. टेक स्क्रीनशॉट. हाँ सर रुको. यस सर. सर लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन blackboard में ब्रैकेट नहीं में दिया है कि हर एक नंबर को ट्राई करना है. क्या फर्स्ट क्वेश्चन? में ब्रैकेट में दिया है कि ट्राई ईच नंबर. हाँ, तो हम हर नंबर ट्राई किए ना. हर नंबर ट्राई करना मतलब कैसे? जब तक आपको आंसर नहीं मिलता तब तक ट्राई करते रहो. अगर आपको पहले ही अगर आंसर मिल जाता है तो बाकी ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है ना. हाँ, पहले में आपको आंसर मिल रहा है तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है. बाकी में मिलेगा नहीं ना. एक बार अगर आपको आंसर मिला तो दोबारा मिलेगा क्या? वो दूसरे नंबर के लिए नहीं मिलता. वो अगर नहीं मिलता है तो एक एक नंबर ट्राई करते रहना है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन. Question number 2. Question number 2 is what? Complete the following equations by balancing on both sides. Balancing on both Complete the following equations by balancing on both sides. Write down first. Y plus 3 by 8 is equal to 8. And you have to find the value of y plus 3, not the value of y. Okay? आपको वैल्यू फाइंड करना है y plus 3 की. y की वैल्यू नहीं फाइंड करना है क्योंकि जनरली हम y फाइंड करते हैं, मतलब जो वेरिएबल है उसे फाइंड करते हैं. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व एनी इक्वेशन मींस दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड देयर. ओके, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y plus 3, नॉट द वैल्यू ऑफ y. सो राइट डाउन दिस इक्वेशन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. y plus 3 by 8 is equal to 8. y plus 3 by 8 is equal to 8. 8 Okay, your question is what? This one. Y plus 3 Y by plus 8 is equal to 8. And you have to find the value of y plus 3. Y plus is equal 3. to what? 8 into 8. ओके, तो आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करना है. y plus 3 मीन्स ये है, दिस इज y plus 3. तो y plus 3 इज इक्वल टू क्या होता है? दिस 8 रिमेन्स एज इट इज. और ये जो Yes, sir. डिनोमिनेटर में है ये इनटू में जाता है. मैंने आपको कल ही बताया था. ओके, जो हाँ, डिनोमिनेटर में है वो इनटू में जाता है. सो y plus 3 इज इक्वल टू 8 8 जार 64. तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है. इसकी वैल्यू आ रही 64. सो दिस इज योर आंसर. Okay, understood? Yes, sir. Repeat once again. Sir, please repeat once again. What? Hello? रिपीट करो. Repeat once again. Repeat करना है. हाँ सर. हाँ सर. देखो, y plus 3 by 8 is equal to 8. This is your given equation. And you have to find the value of y plus 3. Where is y plus 3? ये आपका y plus 3. इसकी वैल्यू फाइंड करना है. इस y की नहीं.
ओके, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है 8 एज इट इज, और ये जो 8 डिवाइड में है वो इंटू में 8 जाता है, into 8. 8 वो into 8 8. 64 हो गया आंसर। y प्लस 3 इक्वल टू 8, आपको y प्लस 3 निकालना है, कितना आता है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 8। आपको y निकालना अगर रहता तो 3 उधर ट्रांसफर किए रहते और आंसर 64 माइनस 3 यानी 61 आया रहता। ओके, सर मतलब वो लेकिन डिनोमिनेटर आपको को मल्टी y नहीं निकालना है, y प्लस 3 निकालना है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. हेलो, यस सर. अरे बोलो Yes, ना। sir. सर व्हाट सर? हाँ, अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. Yes, Now, sir. next problem. What is the next? सेकेंड आप कर सकते हो बी वाला, आप लिखिए सी, सी और डी बताता हूं मैं। राइट डाउन सी, 2 into 3x plus 1 equal to 20. 2 into 3x plus 1, question C, 2 into 3x plus 1 is equal to 20. 2 into 3x plus 1 equal to 20. तो 3x plus 1 की वैल्यू निकालना है आपको निकालना है ये 3x plus 1 is equal to what, ये निकालना है आपको। देखो, हेलो हेलो, Yes, sir. आपको ये निकालना है 3x plus 1। ओके, तो हाँ, 3x सर। plus 1, देखो 3x plus 1 इज इक्वल टू ये 20 एज इट इज, ये 2 जो है इंटू में है, 2 इंटू में Sir, है answer 10. तो ये डिवाइड में आएगा, और 3x plus 1 इज इक्वल टू इसको डिवाइड आंसर 10 आता, हो गया आंसर 10। आपको ये आंसर निकालना है 3x plus 1 कितना होता है, तो 3x plus 1 10 होता है, बस हो गया। अंडरस्टूड? Sir, 10 Yes, कैसे? 10 डिवाइड करो ना 2 से, 20/2 यानी 10, 2 10 20। सर यस, सर जो मल्टीप्लाई रहता है उसको डिवाइड करना पड़ता है और डिवाइड को मल्टीप्लाई. हाँ हाँ, वही तो आपको बता रहा हूं उस दिन से, जो प्लस रहा तो माइनस करना है, माइनस रहा तो प्लस करना है, डिवाइड रहा तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड करना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ये लिखो, इरेज कर रहा हूं मैं। सर वो इरेज कर लो, सी वाला मत करो। हाँ, ये देखो एक बार आपको ये कौन सी बैलेंसिंग मेथड वाली ये बता देता हूं आपको। 2x इज इक्वल टू 10 है, दिस इज एन इक्वेशन, आप इसे अच्छे से ध्यान दो। 2x इज इक्वल टू 10, 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, X. इक्वेशन सॉल्व करना, यानी वहां पर जो वेरिएबल यूज किया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आपको Yes, sir. x चाहिए तो 2 नहीं चाहिए, अगर 2 को रिमूव करें तो x इक्वल टू जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। ओके, तो 2 को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस साइड में डिवाइड किया तो इस साइड में भी डिवाइड ही करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस। ये होगा X is equal to बैलेंस, 5. X is equal to 5. तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा, ये होगा बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो मैंने इस साइड में 2 से डिवाइड किया तो इस साइड में भी 2 से डिवाइड किया, कोई चेंजेस नहीं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है। यहां पर देखो 2 2 गेट्स कैंसल, आंसर 2/2 यानी 1 होता है, 2/2 में हाँ, sir. यानी 1x, यानी सिर्फ x रहेगा, और इधर 2 डिवाइड करेंगे तो 5 आता, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाता। ठीक है, यानी x इक्वल टू 5। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम ट्रांसपोजिंग मेथड में 2x इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 10 और ये 2 जो है वो डिवाइड में लाते डायरेक्ट, जो इनटू में है डिवाइड में, आगे यहां पर डिवाइड में, यहां पर भी डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड में लेते हैं, इसका आंसर निकालते हैं 5। ठीक है, ये दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है। तो ये हो गई बैलेंसिंग, ये हो गई ट्रांसपोजिंग, ये बैलेंसिंग और ये ट्रांसपोजिंग। किसी के घर से आवाज आ रही, म्यूट हो जाओ। सर किसका आंसर है? हाँ, किसी के घर से आवाज आ रही है, आप म्यूट हो जाओ। ओके, हाँ देखो समझ में आया, इनटू में रहा तो डिवाइड में कैसे आता वो मैंने बताया आपको। अब डिवाइड वाला बता देता हूं, एक डिवाइड में रहा तो डिवाइड में रहा तो इनटू में, जैसे कि x/5 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, x/5 इज इक्वल टू 10,
अभी बैलेंसिंग बताता हूं, इसे रिमूव करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, बाय 5 ठीक है। इसे रिमूव करने के लिए x/5 है, इधर 10 है, इसे रिमूव करने के लिए यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा। सर ये लिखे इस साइड लिखना नहीं है, देखो आप हाँ इधर इंटू 5 की तो इधर भी इंटू 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ x रहेगा और इधर 10 5 50 हो सर ये जाएगा, लिखे क्या ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर x/5 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू ये 10 एज इट इज, और जो डिवाइड में है वो इंटू में ले आ जाते डायरेक्ट, ठीक है। 10 5 है, ये देखो 50 आ गया आंसर। दोनों इसमें आंसर सेम ही आता है, ये बैलेंसिंग और ये ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ये बैलेंसिंग और ये ट्रांसपोजिंग लिखना है क्या आपको? सर मैं स्क्रीनशॉट निकल के रख रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सर मैंने पहले ही लिख लिया वो। ठीक है, लिख लो। अभी सर डी लास्ट, बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर डी लिखो। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन डी है -y प्लस 46 इक्वल टू 32। ये आप कर सकते हो। -14 -14 आता हाँ डी वाला बताओ। हो, माइनस, सर करके दो। सर एक बार बताए दोनों। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर। हाँ देखो, -y डी वाला बताओ। डी, लास्ट क्वेश्चन डी, -y -y प्लस plus 46 is 46 equal to 32 इज इक्वल टू 32, Is और equal फाइंड to करना है -y. माइनस वाई फाइंड करना है। हाँ, देखो, तो -y फाइंड करना है, तो -y इज इक्वल टू, आपको मालूम है 32 एज इट इज, ये कांस्टेंट है, हाँ ये उस साइड 32 में जाता है, -46 प्लस ये 46 का -46 होता है, देयरफॉर -y इज इक्वल y is equal to टू, एक पॉजिटिव -14 एक नेगेटिव रहा तो सब्ट्रैक्शन होता है, subtraction बड़े नंबर में से छोटा माइनस करोगे और बड़े नंबर की साइन मतलब नेगेटिव साइन दोगे आप। कितना आंसर आता है इसमें से माइनस किए तो? 14 आता है, ठीक है। तो आपको निकालना है -y, तो -y इक्वल टू 14। एक्चुअली इसका आंसर y इज इक्वल टू 14 है। अगर इसे रियल में सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में निगेटिव है, तो निगेटिव कैंसिल हो जाता है और आंसर ये आता है। निगेटिव नंबर की वैल्यू नहीं निकालते, हम पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये है, लेकिन आप पूछ रहा है वो -y चाहिए, उसको y नहीं चाहिए, इसलिए -y इक्वल टू -14 ये आंसर रहेगा। ओके yes sir ओके, राइट डाउन दिस। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। हाँ, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। 3x इक्वल टू 30, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहला लिखिए 3x इक्वल टू 30। कौन सा? अभी बताया था। 3 3x इक्वल सर टू इसे 30, कौन सा? देखो 3x इज इक्वल टू 30। आपको सर आंसर 10 मैंने सॉल्व किया। answer 3x 10 इक्वल टू 30 x is equal x to इज इक्वल 10 टू 30 डिवाइडेड बाय 3 x इज इक्वल मी थोड्या वेळात फोन करतो, क्लास घेत आहे मी, ठीक आहे, 10-15 मिनिटात। हेलो सर मेरे मोबाइल में आप दिख ही नहीं रहे। हाँ देखो, लिसन हियर, 3x इक्वल टू 30, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं आपको, डबल दूसरा प्रॉब्लम है, वो दूसरा प्रॉब्लम था। 3x इक्वल टू 30, सॉल्व द फॉलोइंग में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करना यानी ही वहां पर जो वेरिएबल यूज किया है उसकी वैल्यू निकालना है। यहां पर यूज किया है x, यानी आपको x की वैल्यू निकालना है, मतलब ये 3 नहीं चाहिए। ओके, 3 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3x को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस साइड में भी 30 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं। ओके, जिस नंबर से इधर डिवाइड किए उसी नंबर से इधर भी करना है। यहां अगर किसी और नंबर से किए तो आपका आंसर रॉन्ग। यहां 3 कैंसिल होता है और बचता है सिर्फ x। सर ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते ना? हाँ कर सकते, वो भी बताऊंगा, ठीक है। 3 गेट कैंसिल, यहां रहेगा सिर्फ x, और 30 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 10। ओके, अंडरस्टूड? yes sir सर। ठीक है, राइट डाउन। अब बी वाला प्रॉब्लम ट्रांसपोजिंग मेथड से लेंगे, ठीक है। 4x इक्वल टू 4x is 60, equal राइट डाउन to दिस। 60
4x इक्वल टू 60। इस मेथड से भी कर सकते हो, ये बैलेंसिंग है, वो ट्रांसपोजिंग से बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट आएगा x इज इक्वल टू 60 एज इट इज, जो इनटू में है वो डिवाइड में, वो डिवीजन। तो आप x इज इक्वल टू डिवाइड करो 60 को, 60 डिवाइडेड बाय 4, 15। 15, वेरी गुड, 15, ठीक है। आप कैसा भी करो, जनरली वो मेथड हम फॉलो करते हैं क्योंकि आगे चलकर ये करेंगे, ये फटाफट हो जाती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ओके, बैलेंसिंग, ट्रांसपोजिंग, अंडरस्टूड बोथ मेथड्स। अगर किसी को वो समझ में नहीं आए तो आप ये मेथड यूज कर लेना। ओके, ओवर। नाउ नेक्स्ट, now question C you can solve, question D also. Question D, see here, what is the answer, can you tell me? Question D, 7x equal to 0. 7x is equal to 0, तो x is equal to क्या लिखोगे आप? 0 by 7. 0 by 7 is equal to 0, ठीक है, उसका आंसर 0 आएगा। यस सर। हाँ सर। देन अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर E, -2x इक्वल टू -18। सर x इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय -2। तो -2x इक्वल टू -18, देखो -2x इज इक्वल टू -18, दोनों साइड में निगेटिव है, हाँ सर। ठीक है, हाँ। दोनों साइड में निगेटिव नंबर है, तो आप X is equal to 40. दोनों साइड में निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव रिमूव कर सकते हो आप, और डायरेक्ट 2x इक्वल टू 18 लिख सकते हो, ठीक है। और x इज इक्वल टू, ये 18 एज इट इज, 2 डिवाइड में आता, और x इज इक्वल टू 9, हाँ सर, मैंने बोला 9 लिख सकते हाँ हो, सर। राइट डाउन। Now the next problem, that is question number I, -3x equal to 27, -3x is equal to 27, -3x equal to 27, सर 9 ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसा, x माइनस एक्स, 3 को ही नीचे ला सकते, X is equal to -9. 3 डिवाइड में आएगा तो -x इज इक्वल टू 9 होता है, -x इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू, ये 9, ये जो निगेटिव साइन है इसको मिल जाता, -9 हो जाता, हाँ. ठीक है, x इज इक्वल X टू equals to -9. साइन इसको मिल जाता, इसको आ जाता वो, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या? 3x is equal to 27. हाँ 27 by So -3. x is equal to 27 minus 3. हाँ, 27 अपॉन -3 लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 27 अपॉन -3 मीन्स डायरेक्ट -9, Minus my answer. हाँ -9 आंसर आता डायरेक्ट, Answer. हाँ चलता चलता कर सकते हैं आप। सर ऐसे कैसे? ऐसे यानी कैसे? सर मेरे कैमरे में देखो। क्वेश्चन जे देखो, सर मेरे कैमरे में क्या कैम में जाना है, कौन से कैम में जाना है? सर कैमरा में देखो। 81 इक्वल टू -9x, देखो जे 81 इक्वल टू -9x, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये -9x इधर लिखो और 81 उधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप x इज इक्वल टू 81, ये -9 डायरेक्ट नीचे ला सकते हो, तो x इज इक्वल टू 9 9 81, मतलब -9 आंसर आएगा, X equals to -9. हाँ x इक्वल टू -9, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, solve ax equal to b for x. Hello, over this? Yes, हाँ sir. सर।
हो गया, ठीक है। देखो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व ax इक्वल टू बी फॉर x। नहीं समझा सर। हाँ लिसन हियर, फोर्थ का फर्स्ट ax इक्वल टू बी फॉर x। लिसन हियर सॉल्यूशन, यहां देखिए ax इक्वल टू बी फॉर x मीन्स व्हाट, you have to find the value of x, okay? Yes, sir. ax equal to b for x means you have to find the value of x. Your equation is ax equal to b, तो x is equal to b as it is, और a डिवाइड में आता है। हो गया आंसर, हाँ, x is equal to b by b by ओवर, क्योंकि ये नंबर नहीं है तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर यही है आपका। अंडरस्टूड? Okay, sir. ओके, राइट डाउन। Yes, sir. yes sir। Can you tell me question B orally? Question B orally, can you tell me? Yes, sir. हाँ, yes, tell me. नहीं. हर्षल तुम पढ़ लो। A, B, H सर h is equal to a by b। H is equal to A by B. Very good. by B. नहीं, wrong है। हाँ सर, सॉरी। BH by A। a is equal a by h, b B is is equal to equal a to- by हाँ, B is equal to A by H. हाँ B is equal to A by H. लिख के दो. लिखो, सर लिख के दो. b is equal to a by h। देखो ये A equal to BH है, हाँ A equal to BH for B लिखा है, b लिखा है ना, ये for H है, for B है, मतलब B की वैल्यू फाइंड करना है। For B। आप B चाहे तो आप BH इधर लिख सकते हो, A उधर लिख सकते हैं, या रहने दो वहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको निकालना है B, तो B एज इट इज रखिए। ये H इंटू में है, ये H इंटू में है, तो ये डिवाइड में आएगा। B इक्वल टू A बाय H। ये इधर था और वो उधर था, अभी ये वाला इधर है और वो वाला उधर है। B इक्वल टू A बाय H। ओके, राइट डाउन। सर हो गया. ठीक है, नाउ सर किसी के घर से आवाज आ रही. हाँ, क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी आई इक्वल टू पी आर टी फॉर आर। क्वेश्चन डी, सर कौन सा? डी 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 फॉर डॉग, आई इक्वल टू पी आर टी बाय पी आर टी। सर वेरिएबल्स कैपिटल में भी होते हैं? हाँ नहीं, कैपिटल में जनरली नहीं होते, स्मॉल ही होते हैं, वेरिएबल स्मॉल ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम वैसे दिया है, फॉर आर लिखा हुआ है, आपको आर फाइंड करना है। तो ये हाँ सर. मैं ये पूरा इधर लिखूं, पी आर टी इधर लिखता हूं और आई उधर लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी आर टी इधर लिखा, आई उधर लिखा, ठीक है। आपको निकालना है आर, तो आर इज इक्वल टू, ये आई वैसे ही रहेगा, आर निकालना है तो ये पीओटी पीटी, पीटी डिवाइड में आएगा, पीटी ओवर। ओके, अंडरस्टूड? आर इज इक्वल टू पीटी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है आर के, इसलिए वो डिवाइड में। यस सर. समझ में आया? यस सर। यस सर. तो कैन यू सॉल्व रिमेनिंग? यस सर. ओके, यस सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हाँ सर. कि नहीं लेंगे? हाँ सर. लेंगे. ठीक है, लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन। अगर पढ़कर सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन। ओके, फर्स्ट x बाय 6 इक्वल टू 5, वो आप कर सकते हो, इजी प्रॉब्लम है वो। x बाय 6 इक्वल टू 5, हाँ। सर x is equal to 30। x by 6 is equal to 5. ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट, x बाय 6 इक्वल टू 5, ट्रांसपोजिंग है, डिवाइड में है, x is equal to 5 multiplied by 6. डिवाइड में तो इंटू में आएगा, 30। x इक्वल टू 30 30. ओवर। ठीक है, डिवाइड में वो इंटू में आएगा। उसके बाद बी देखो,
10 इज इक्वल टू एक्स बाई 3 कितना था? 10 इज इक्वल टू एक्स बाई 3 ये भी इंटू हो जाएगा। आप चाहे तो एक्स बाई 3 इधर लिखो और 10 उधर लिखो, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है? हाँ ये देखो सी, x बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, x बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2 ओवर दिस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, answer is 2. C का आंसर 2 है सर। क्वेश्चन नंबर सी ना, ये हो गया आपका सर आंसर 2 है। आंसर 2 है, ओके। क्या है प्रॉब्लम? x बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2। देखो x बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2, ये प्रॉब्लम है। आपको इतना पता है कि जो डिवाइड में वो इनटू में आएगा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 1 बाय 2 एज इट इज रहेगा। 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय ए आप आपस में बात मत करो, में जाएगा। कीप क्वाइट। एक ही मिनट बचा है। ये देखो x इज इक्वल टू 1 बाय 2, 4 इंटू में जाएगा। इंटू में गया मतलब ऊपर वाले नंबर को इंटू है, नीचे वाले नंबर को इंटू नहीं है। मतलब ये 4 1 जा 4 है और नीचे सिर्फ 2 है। 4 को डिवाइड करो 2 आंसर मिलेगा आपको 2, 2. ठीक है। 2 4 जा 2 2 जा 4, यस सर। इस तरह से आंसर निकलेगा, ठीक है। अभी टाइम हो गया है तो आप ट्राई करो बाकी के क्वेश्चंस। नहीं समझेंगे तो आप मुझे बाद में परसों पूछ लेना। डी बता दो सर।